Happy Women's Day, Madam Speaker, and all my colleagues. On this happy occasion of International Women's Day, I seek blessings from all the elders and convey my blessings to all the young women. Today I would like to talk about the positive aspect of women in our society. Yatra naryast पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता. जहाँ नारी की इज्जत करते हैं वहाँ भगवान भी खुश होते हैं. नारी शक्ति को हम दुर्गा के रूप में, महालक्ष्मी के रूप में पूजते हैं. शक्ति प्राप्त करने के लिए, धन प्राप्ति के लिए. लेकिन उनके साथ आज भी वैसे अच्छा व्यवहार होता है क्या? Women are natural homemakers. If a woman is respectfully empowered, her house becomes a home. एक बेटी को बहू के रूप में हम अपने घर लेकर आते हैं, जैसे कि एक वृक्ष को अपने घर से उखाड़ कर दूसरे घर में ले जाते हैं. उस वृक्ष के लिए पानी देना और उसे प्यार से संभालना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो वो सूख जाता है और गिर जाता है. इसी तरह एक बेटी जो बहू बनकर आती है, उसके साथ प्यार और मान सम्मान के साथ रहेंगे तो शी विल मेक ए हाउस. स्त्री से सृष्टि चलती है, वंश की वृद्धि होती है. स्त्री न होती तो सृष्टि नहीं होगी. जिस पेड़ पर बैठे हो उसी को उखाड़ दोगे, उसी के साथ क्राइम करोगे तो गिरोगे और बहुत बुराई होगा तुम्हारे साथ. ये आप सबको समझना चाहिए. स्त्री को अपनी बेटी की तरह, अपनी बहू की तरह, अपनी माँ की तरह इज्जत दोगे तो जीवन सुखी रहेगा. अगर आप एक सुंदर सा घर बसाना चाहते हो तो शक्ति को इज्जत देना चाहिए, नारी की इज्जत करना चाहिए. कहते हैं मानव जन्म ही बहुत ही अपूर्व है. ऊपर से एक नारी का जन्म लेना बहुत ही सौभाग्य की बात है. ये बहुत ही हम सब महिलाओं को बहुत अभिमान होना चाहिए, गर्व होना चाहिए कि हम नारी हैं. आपको सुनने के लिए बोला जा रहा है. हम ही अगले पीढ़ी का जन्म देते हैं देश के लिए. Those children become the wonderful future citizens of the nation. अपने साथ अच्छे संस्कार लेकर आती हैं. संस्कार स्त्री ही दे सकती हैं. Society that nurtures women automatically becomes a cultured society. If a woman is respected in society and nation, she makes a wonderful society and nation. If the world respects a woman, world becomes peaceful and filled with harmony. Now I come to gender equality. Every human being is complete and healthy if both male and female is balanced. The Chinese also believe in power of yin and yang. When we pray, we always invoke the mother and father of the universe. Without women, the universe remains incomplete. In Sanatan Dharma also, we worship Lakshmi Narayan, Shiva Parvati, and also the creator Brahma. He needs the support of Saraswati. Without her, he cannot do any creation. Today's women are career-oriented women who are creating history by breaking the proverbial glass ceilings all over the world. हम देख सकते हैं दुनिया में बहुत सारी महिलाएं बहुत अच्छे बड़े बड़े पदवी में बैठी हैं और कामयाबी भी हासिल कर रही हैं. हमारे देश में भी बहुत सारी महिलाएं पुरुष के साथ कंधे से कंधे मिलाकर आगे बढ़ रही हैं और ऐसी महिलाओं को प्रोत्साहित करना बहुत ज़रूरी है ताकि वो भी देश के लिए अपना योगदान दे सकें. Women are naturally multifaceted and multitaskers. जहाँ महिला घर से बाहर जाकर कमाकर लाती है, वही महिला अपने घर को भी बहुत अच्छी तरह संभालती है. This is called work-life balance. In Mumbai, I have personally seen in the outskirts of Mumbai, the women living, they take care of the children, they
take care of their husband, they pack lunch and then send them to the office and then take care of their saas, sasur. And then 2 hours they take a journey to go to the city and then work in an office. And then in the evening they come back and then they start taking up all the responsibility of the house, and she will be the last person to go to sleep. So I really admire all these women, how much they work, and we really get inspired from them. घर के women are naturally powerful, इसीलिए उन्हें शक्ति स्वरूपा कहते हैं. शक्ति की उपासना जो करते हैं उनमें और भी शक्ति बढ़ती है. Every girl should be allowed to dream big like every boy, so that she can become an achiever in her own right. We should create a balance between male and female, give equal opportunities instead of suppressing women. जहाँ नारी की इज्जत होती है वहाँ दिव्य शक्तियाँ बढ़ती है. जहाँ नारी की तिरस्कार होगा वहाँ असुर शक्तियों का बोलबाला होगा. नारी को जहाँ इज्जत देंगे वहाँ संपन्नता, सफलता, शांति, प्रेम का वातावरण होगा. नारी को नकारोगे, दुत्कारोगे, वहाँ दरिद्रता, आक्रोशन, प्रकृति का आपदा अपने आप आ जाती है. I would like to conclude with a quote from my dance ballet by Ravindra Jain ji. मैं नारी हूँ, सृष्टि का अनुपम रूप. मैं परंपराओं की जननी भी हूँ तथा उनका निर्वाह करने वाली भी. संसार मुझ पर मोहित हैं तो इतिहास गर्वित. मुझ में जीवित हैं वो सब नारियां जो अपने आदर्श चरित्र यहाँ स्थापित करके गई हैं. मैं अतीत भी हूँ, वर्तमान भी हूँ और आने वाले कल का उत्तरदायित्व भी मुझी पर है. मैं नारी हूँ. धन्यवाद. धन्यवाद. Happy Women's Day, Madam Speaker and all my colleagues. On this happy occasion of International Women's Day, I seek blessings from all the elders and convey my blessings to all the young women. Today I would like to talk about the positive aspect of women in our society. Yatra naryast pujyante ramante tatra devta. जहाँ नारी की इज्जत करते हैं वहाँ भगवान भी खुश होते हैं. नारी शक्ति को हम दुर्गा के रूप में, महालक्ष्मी के रूप में पूजते हैं. शक्ति प्राप्त करने के लिए, धन प्राप्ति के लिए. लेकिन उनके साथ आज भी वैसे अच्छा व्यवहार होता है क्या? Women are natural homemakers. If a woman is respectfully empowered, her house becomes a home. एक बेटी को बहू के रूप में हम अपने घर लेकर आते हैं, जैसे कि एक वृक्ष को अपने घर से उखाड़ कर दूसरे घर में ले जाते हैं. उस वृक्ष के लिए पानी देना और उसे प्यार से संभालना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो वो सूख जाता है और गिर जाता है. इसी तरह एक बेटी जो बहू बनकर आती है उसके साथ प्यार और मान सम्मान के साथ रहेंगे तो शी विल मेक ए हाउस. स्त्री से सृष्टि चलती है, वंश की वृद्धि होती है. स्त्री न होती तो सृष्टि नहीं होगी. जिस पेड़ पर बैठे हो उसी को उखाड़ दोगे, उसी के साथ क्राइम करोगे तो गिरोगे और बहुत बुराई होगा तुम्हारे साथ. ये आप सबको समझना चाहिए. स्त्री को अपनी बेटी की तरह, अपनी बहू की तरह, अपनी माँ की तरह इज्जत दोगे तो जीवन सुखी रहेगा. अगर आप एक सुंदर सा घर बसाना चाहते हो तो शक्ति को इज्जत देना चाहिए, नारी की इज्जत करना चाहिए. कहते हैं मानव जन्म ही बहुत ही अपूर्व है. ऊपर से एक नारी का जन्म लेना बहुत ही सौभाग्य की बात है. ये बहुत ही हम सब महिलाओं को बहुत अभिमान होना चाहिए, गर्व होना चाहिए कि हम नारी हैं. आपको सुनने के लिए बोला जा रहा है. हम ही अगले पीढ़ी का जन्म देते हैं देश के लिए.
those children become the wonderful future citizens of the nation. अपने